बहुत अच्छे फ्रेंड मेहुल सर ने ऑलरेडी given the idea about when the tax audit is applicable and under which clause the tax audit is applicable. My part would be to discuss the clause wise analysis of form number 3CD. This is the form which would be mainly applicable to you in your office, in your articles. Before I begin the technical part, I'll be honest in saying that many students, see, I'm talking about the scenario before 10, 12 years. Many students were coming to us and asking us that, sir, whether we should go for articleship or not, in spite it is getting recorded, I am straight. This is 10, 12 years before scenario. And उस टाइम भी मेरा व्यू था कि खाली फाइनल सी एग्जामिनेशन क्लियर करने के पीछे मत भागो। एग्जाम क्लियर कर लोगे, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, लेक्चर्स अटेंड करके आप एग्जाम क्लियर कर दोगे, ये बुक पढ़ के वो बुक पढ़ के, अभी तो लेक्चर भी नहीं, अभी तो वीडियो देख के 1.5 पे 2 पे यू विल क्लियर। बट वो होगा क्या, बंदा डॉक्टर बन गया, उनको पता है कि बुक में ये लिखा है पेशेंट आए क्रिटिकल हो तो पेशेंट को ऐसे डील करने का, बट पेशेंट को कभी डील नहीं किया है। सो पेशेंट आया तो ही हैज गॉट theoretical knowledge, he doesn't have the practical knowledge, and that practical knowledge you can get only from your employer, your sir, wherein you are doing the articles. Friends, 12 साल 15 साल पहले कोई मुझे पूछने आता था तब भी मैं क्लियर था कि आर्टिकलशिप हैज टू बी डन कंपल्सरीली, जेन्युइनली, मोस्ट जेन्युइनली। आज भी मैं बहुत क्लियर हूं, एंड नहीं कि ये प्लेटफॉर्म से क्लियर हूं। Even when I am teaching the students for academic purpose, my views are same that you have to go to the articleship. आप करंट ईयर के ही, करंट एग्जाम के ही, फाइनल सीए के एग्जाम के ही रैंक्स देखो। as far as I know, all the rankers or all the throughout clear जो जिन्होंने किया, they are doing or they were doing the articleship at a good place and they've done genuine articleship. So I would be requesting you that take your articleship and take your work as seriously as you are taking your study, and that would make you a chartered accountant as well as a successful chartered accountant. As far as clause wise analyses are concerned, form 3CD is concerned, see, this 3CD is one of the most important form, as I have said earlier, and it has been divided into two parts. हो सकेगा तो बेस्ट रहे, प्लीज इफ यू कैन डू दैट। खसेड़ी थोड़ो, ચાર્જિંગ આમ તો છે પણ છતાં પણ લગાવી દો આઈ શાંતિ, ટેક યોર ટાઈમ। ચાલશે ચાલશે, કઈ મને તકલીફ નહીં પડે, શું કરવા। ઓકે ફાઇન। સો clause wise
ये वर्चुअल फिजिकल की वजह से दोनों का कनेक्ट. Take 2 minutes and we'll begin. તમારામાં કરી દેશો તો ચાલશે. મને પેન ડ્રાઈવ મારી પાસે હશે ના. પેન ડ્રાઈવ આપું મારી પાસે છે. ઓકે, આ ખસેડી દઉં તો લેપટોપ મારું. Technology has its own issue, so pata nahi, but we have the backup. I think fair, no problem. Chaliye, you have the material in your hand, so we'll start with the same. Okay, you have form 3CD and we have got the analysis clause wise. देखिए फ्रेंड्स, पार्ट ए ऑफ 3CD you are aware has got 8 clauses. अच्छा, मैं आगे जाऊं उससे पहले, how many of you are physically dealing with 3CD in your office? Almost all, या फर्स्ट ईयर के आर्टिकल हो गए तो नहीं, बट डेफिनेटली you will get that experience in the current year. As far as part A is concerned, it is very general in nature. मीनिंग thereby आपको छोटी मोटी डिटेल देनी है वहां पे, which begins with the name of the assessee. अब मैंने क्या करने की ट्राई की है यहां पे कि से वी टॉक अबाउट नेम ऑफ द assessee, तो आई एम नॉट only involving myself into the general issues, but other technical issues also. Like, you have to write the name of the assessee whose accounts are being audited. Point 1. ये नाम कैसा होना चाहिए? जो परमिट अकाउंट नंबर में, परमिट अकाउंट नंबर का कार्ड होता है जिसमें लिखा हो, लाइक मेरा नाम लिखा हुआ है पान कार्ड में पावागढ़ी पलक भास्कर भाई, देन इट शुड बी पावागढ़ी पलक भास्कर भाई. है बहुत छोटा छोटा, बट स्टिल आई हैव टच एंड गो. दूसरा, मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर मैं पावागढ़ी साय एंड एसोसिएट्स प्रोप्राइटर पलक पावागढ़ी के नाम पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो इज इट रिक्वायर्ड to put the trade name like Pavagadi Sai and Associates proprietor Palak Pavagadi or XYZ traders proprietor Mr. X? Answer is yes. Friends, मान लीजिए कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नाम है PSA and Associates. It's a partnership firm. अब partnership firm PSA means it is Pavagadi Shah and Associates. मान लीजिए कि अभी हमने एक नया पार्टनर लिया who is having the surname Parikh. हमने आज नया पार्टनर लिया, तो अभी हमारी फर्म का नाम हो गया PSP and Associates, पावागढ़ी साहब परीख एंड एसोसिएट्स.
हम ऑडिट रिपोर्ट अभी जो आप आपके ऑफिस में बनाओगे दैट वुड बी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में फर्म का नाम था पावागढ़ी शाह एंड एसोसिएट्स। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सर साइन कर रहे हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, उस दिन फर्म का नाम है पावागढ़ी शाह परीख एंड एसोसिएट्स। क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा नाम हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, वेदर इट इज पावागढ़ी शाह और पावागढ़ी शाह परीख? आंसर इज you can put both the names in the sense that Pavagadi Shah and Associates, now known as Pavagadi Shah Parikh and Associates। आपकी फर्म का नाम पहले X और अभी Y हो गया हो ना, तो आप Y नाम लिखते हो, पर आप ब्रैकेट में लिखते हो earlier known as so and so। I'm not naming any firm, in spite that firm may have my friends as partners, but I cannot from this platform name, but you are aware what I mean to say। You have to put both the names as far as your audit report is concerned, 3CD is concerned। Same way, say for example friends, that if assessee dies, Mr. X का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था पीवाई 2021 का, he died in COVID in the month of April और May। अब ऑडिट रिपोर्ट तो बढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़े होगा कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, उसके बाद कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कोई टैक्स नहीं, और हम बोले कि भाई टैक्स लेना हो, ऑडिट रिपोर्ट लेना हो तो जाओ। हाँ, अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। भाई वो चले गए, सब बैंक बैलेंस तो थोड़े साथ में लेके गए हैं, वो तो यहाँ पे छोड़ के गए हैं। सो इज लीगल हेयर हैज टू फाइल, while filing the audit report, your name should be deceased Mr. X, represented by legal heir so and so। So that's your first clause। Clause 2, address mentioned in the PAN card number, but if there is any change in the address from PAN card to today, that fact need to be mentioned। PAN number, it's simple, but I would advise you कि फर्स्ट ईयर का अगर आप ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हो ना, तो पान कार्ड की कॉपी लीजिए। व्हाई पान कार्ड की कॉपी लीजिए? बिकॉज दैट वुड बी हेल्पिंग यू टू पुट अप द एग्जैक्ट पान। वरना सी की जगह जी हो गया या जे की जगह जी हो गया ना, देन इट वुड हैव अ बिग रिपलकेशन। कैसे? अभी सब ऑनलाइन है। अगर आपने आपका पान नंबर था, से फॉर एग्जांपल AGNPP 1234N मेरा पान नंबर है, और मैंने लिख दिया AGN की जगह ACNPP 1234N, तो साहब मेरे ऑडिटर ने जितना भी मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एडिशन किया है, बताया है 43B का डिसअलाउंस या 40A IA का, वो सब वो बेचारे ACN वाले में 143(1A आ जाएगा। सो बी केयरफुल। सर ने आगे ही बोला, मेहुल सर ने, कि कॉपी पेस्ट आप करते हो, इट्स ओके, बट यार जहां जहां पे पेस्ट किए हुए में कुछ एडिशन करने लगे तो प्लीज डू दैट, है ना। आप सिंपली ब्लाइंड एक्सरसाइज मत करना। नेक्स्ट वन, क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट, अगर आप आईडीटी में या अदर एक्ट में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, देन यू हैव टू गिव द डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। Like GST mein you are required to get yourself registered, and you have registered, you have to give the GST number। Earlier it was service tax and VAT। Now I have one poser over here, and that poser is, I have a client and I'm asked that this is not academical, we are working from the viewpoint of helping the office, we are working from the viewpoint of practicality। I have a relative who is doing IT outsourcing, प्रोप्राइटरशिप में IT आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और पिछले 4-1 साल से वो प्रोप्राइटरशिप में यूएस की कोई कंपनी के लिए आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब ये मेरे रिलेटिव ने आज तक कभी भी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। आप ऑफिस में आर्टिकलशिप जेन्युइनली कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि काफी क्लाइंट्स को सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की या जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिस आई है।
कहां से आई? ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि डॉक्टर्स को भी आई, लॉयर्स को भी आई, आईटी आउटसोर्सिंग को भी आई, काफी लोगों को आई। कहां से आई? तो कि देव ट्राइड, दिस सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हैज ट्राइड टू मैच योर 26AS and service tax return, and it is not matching. If it is not matching, then the question is, why service tax you have not paid? Why you have not paid the service tax, or why you have not paid the GST? And उसकी वजह से काफी लोगों को ये नोटिस आई है। पॉइंट इज, मेरे क्लाइंट के केस में तो एक्चुअली जीएसटी या सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों जीएसटी या सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है? द रीजन बीइंग, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे ना तो सर्विस टैक्स लगता है ना तो जीएसटी लगता है, जहां तक मेरा नॉलेज है। बराबर है, जीएसटी में मेरा नॉलेज बहुत कम है, बट जहां तक मेरा नॉलेज है ये रूल है। अब ये सोकोस का तो हमने जवाब दे दिया, बट डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट इज आस्किंग द क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? आर वी सपोज टू गेट the client registered under service tax or GST? In my humble opinion, yes. थोड़ा बहुत वो डोमेस्टिक काम भी कर रहा है 2-4 लाख का, क्या होगा? आईटी आउटसोर्सिंग का आउट ऑफ इंडिया का करता होगा, तो 2-3 लाख का उनको इंडिया का भी काम मिलता है, दैट इज बिलो द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ द सर्विस टैक्स या जीएसटी, बट एग्रीगेट exceeds the prescribed monetary limit. Whether he has to get himself registered? Answer is yes. He has not got registered. अब ये उनके पुराने सीए ने या आईटी कंसल्टेंट ने, जीएसटी कंसल्टेंट ने प्रॉब्लम की है, तो उसकी वजह से नाउ ही हैज शिफ्टेड द वर्क टू मी एंड आई एम प्रिपेयरिंग हिज 3CD करंट ईयर. He has not got himself registered in service tax or GST, which he otherwise required to get. Friends, while putting the details in clause 4, I don't have his registration number, but I have to put the information in the clause, the last line. If the assessee is liable for registration but not registered, the auditor has to report the same. रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम लिख देते, हम लोग जो लिख रहे हैं ऑफिस में उसके ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसाइज ही नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू न्यू फ्रेंड्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ देम मैं आइडिया दे रहा हूं कि क्या लिखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर. बट इफ यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड यू हैव नॉट गॉट रजिस्टर्ड, फैक्ट नीड टू बी मेंशन्ड हियर. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्लॉज इज assessee status, meaning thereby individual HUF, partnership, POP, BOI, etc. nothing new, so not involving. Previous year assessment year, nothing new, not involving, except पहला ईयर जो आपका होगा ना, the first year for which you are doing the business, starting the business, उसमें there would be a broken period of the previous year. Next year onwards, it would be 1st April to 31st March previous year, and assessment year 21-22 and onwards. Clause 8, सर ने बोला कि उन्होंने बहुत लेंथ में कवर अप कर दिया है, so due to the paucity of time, I'll skip now relevant. भाई ये नया है जो लास्ट ईयर नहीं था. क्लॉज 8 है. क्लॉज 8A टॉक्स अबाउट द न्यू रेजिम. This is a new provision inserted by our honorable finance minister by Finance Act 20. She says, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has said that for individual HUF, resident, non-resident, you have two options. Either go to the old tax rates, 2.5 लाख तक 0, 5 लाख तक 5%, 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%, or go to the new regime provided under 115 BAC, 2.5 लाख तक 5, 2.5 लाख तक 0, 5 लाख तक 5, 5 से 7.5, 10, 7.5 से 10, 15, and so on so forth. 20, 25 and there 15 लाख से ऊपर 30. When you opt for this new regime, you have to forego many deduction exemptions. The point is, ये ऑप्शन तो दिए है, बट are you opting for new regime or old regime?
actually is a part of your ITR. जनरल इंफॉर्मेशन में आपको सिलेक्ट करना होता है कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू रेजिम. इफ आंसर इज यस एंड योर बिजनेस इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, देन यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर 10 IE, व्हिच सिस्टम इज नॉट अलाउइंग यू टू फाइल. या सिस्टम में अभी भी प्रॉब्लम है कि बिजनेस ना हो, बिजनेस के अलावा इनकम हो ना, तो भी वो लोग कह रहे हैं कि 10 IE फाइल करो एंड सो ऑन सो फोर्थ. प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टम वी आर नॉट डिस्कसिंग. इफ वी गो ऑन डिस्कसिंग, कल शाम हो जाएगी. सो लेट अस कीप इट असाइड. बट जो महत्व का मुद्दा है वो है कि 9 सितंबर 2021 को सीबीडीटी ने सर्कुलर देके ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ऑडिट रिपोर्ट एक्सटेंड कर दी. यू आर अवेयर कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है अप टू 15th of January 2022 एंड ITR सबमिट करना है 15 February 2022 तक. दिस इज वन. 3 साल पहले ऐसा नहीं था. 3 साल पहले पोजीशन थी ITR एंड ऑडिट रिपोर्ट, द ड्यू डेट वाज सेम. कि 1 महीने का गैप क्यों दे रहे? 1 महीने का गैप इसलिए दे रहे फ्रेंड्स, that the intention, the planning of government is to come out with pre-filled return. मैं समझाऊं क्या pre-filled, because that would be helping me in part B. You have to be careful while filing form 3CD. Pre-filled का मतलब है 15 जनवरी 22 या उससे पहले आपने फॉर्म 3CD फाइल किया. मान लो कि आप मेरे ऑडिटर हो, मेरा 3CD आपने फाइल किया. आपने मेरे फॉर्म 3CD में 40A1A, 40AIA, नो TDS, नो 30% डिडक्शन, वो क्लॉज में रिपोर्टिंग किया है. तो पॉइंट वुड बी कि आपने जो रिपोर्टिंग किया ना, उसके बेस पे, खास समझना, आपने जो रिपोर्टिंग किया वो रिपोर्टिंग के बेस पे रिटर्न जो आप 1 महीने बाद भरने की आपकी ड्यू डेट है, वहां तक आपके ITR में 10 लाख रुपए के लिए आपने बोला है कि पलक ने TDS नहीं किया है, तो 3 लाख रुपए ऑलरेडी डिसअलाउंस में ऐड होके ही आएंगे. आई रिपीट, ये प्रीफिल्ड का फंडा ये है साहब. आपने 43B में कुछ डिसअलाउंसेस लिखे कि एक्साइज ड्यूटी इज पेड या GST इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट या म्युनिसिपल टैक्स इज पेड आफ्टर द ड्यू डेट. आप जैसे ही 3CD में रिपोर्टिंग करोगे ना, ऑटोमेटिकली ITR में ये प्रीफिल होके ही आएगा. अभी तक ITR में प्रीफिल होके नहीं आता है. अभी तक 143(1)(a आता है, बट गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस दैट बर्डन ऑफ 143(1)(a एंड दैट्स द रीजन अभी कहां पे प्रीफिल होके आएगा? ITR में. पर वो कब? जब 15 जनवरी को आप रिपोर्ट फाइल करो, ऑडिट रिपोर्ट, एंड रिटर्न आप जो 1 महीने के अंदर फाइल करना है तब तक करो, क्योंकि सिस्टम भी टाइम तो लेती है. हमारे यहां, हमारी कंट्री में, नॉट ओनली इन गुजरात, हमारी कंट्री में फंडामेंटल अलग है. हमारी कंट्री में फंडामेंटल है कि हम ऑडिट रिपोर्ट, बाद में रिटर्न एंड बाद में टैक्स, ऐसा नहीं करते. क्लाइंट आता है ना, सबसे पहले हम पूछते हैं कि भाई कितना भरना है. तो क्लाइंट बोलता है कि सर TDS भरा है ना, TDS TCS मेरा 1.5 लाख रुपए का, उसमें से 30-40 हजार रिफंड ला दो. वाइफ बोल रही है कि उदयपुर कुंभलगढ़ घूमने जाना है. तो हम वो 30-40 रिफंड से हमारी NTI से बैकवर्ड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. What I want to convey you is, हमारा जब रिपोर्ट तैयार होता है ना, उससे पहले तो हमारा रिटर्न तैयार होता है. तो जैसे ही हम रिपोर्ट फाइल करेंगे, हमारी डिजिटल से फाइल किया, क्लाइंट ने अपनी डिजिटल से एक्सेप्ट किया, दूसरी मिनट पे अभी मैडम की सिस्टम प्रीफिल करने जाए, उसके पहले तो हमने फिल करके तैयार रखा होता है. एंड वी शूट द रिटर्न. सो आई अफ्रेड whether that 1 month time gap we will be allowing finance ministry or not is a question mark. But the purpose is this pre-filing.
हाँ, पर मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डू व्हाट दे डिजायर टू डू। कल ही मेरा एक टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन में यही ऐसा ही सेमिनार था, फिजिकल फॉर मेंबर्स। तो अभी मुझे स्पेसिफिकली बोला कि पलक थोड़ा कुछ प्री फाइलिंग के लिए बोलना, एंड ऑब्वियसली द सीनियर्स, द एडवोकेट्स आर अगेंस्ट दिस। मैं एक ही चीज बोलूं, सोचा था डिमोनेटाइजेशन होगा, सोचा था 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, भले ही सिस्टम तैयार ना हो। कभी सोचा था फेसलेस ई असेसमेंट हो जाएगा, दोज हु आर डीलिंग विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिस। कभी सोचा था कि सर पूरे दिन में एक भी बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाएंगे? 2019 तक तो मैं हर रोज 2 बार जाना पड़ता था, और अभी मैं शायद ये फाइनेंशियल ईयर में टोटल 2 बार गया हूं, because everything is faceless. We have never thought faceless appeal. Have you ever thought? Answer is no. This pre-filing also we have not thought, but I'm that confident. 2 साल के बाद आप मेंबर हो जाएंगे, हम मिलेंगे कहीं पे, तो you will remember my words that yes, government would be able to do this. How? That government knows, but they will be able to do it. अभी तो क्या है, काफी सारे गवर्नमेंट के सामने ऑपोजिशन है कि ये नहीं चल रहा है, ये साइट मेरी ऑफिस में भी है। कल ही मेरा ये टैग में टैक्स एडवोकेट में लेक्चर था, तो मैंने ट्राई किया, वो रिटर्न फाइलिंग के ऊपर था, तो मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ चेक करूं कि कुछ नया तो नहीं आया ना। 10IE का क्या पोजीशन है, वेबसाइट नहीं चल रही थी, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके बाहर जाके बोला कि वेबसाइट नहीं चलती। एक को मैं पूछू ना, मेरे यहां से 8 जवाब देते। 7 जून थी नहीं चलती, तुम एक रिटर्न भरो तो तुमने खबर पड़े ना। आप एक रिटर्न भरो तो आपको पता चले ना कि वेबसाइट चलती है। आप तो यहाँ पे सेमिनार लेने गए, यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग की, ये किया वो किया, ठीक है, पूछने का ही नहीं चल रही है, मीन नहीं चल रही है। बट एनीवेज, क्लॉज 8 है, is a newly inserted clause which says that friends, ये पर्टिकुलर क्लॉज में आपको 3CD में ही पूछ रहे हैं that whether you are opting for the new regime or old regime. That means 3CD फॉर्म फाइल करते वक्त इंडिविजुअल HUF के 3CD फॉर्म या कंपनी के 115 BAB BAB is for company, ये 3CD फॉर्म फाइल करते वक्त you should be clear that how your tax computation is made, whether it would be as per old regime or whether it would be as per new regime, right? So this is a newly inserted clause. Those who have seen 3CD filed 3CD last year, ये last year नहीं था। Part B, name of the members and partner in the case of AOP. आपको पार्टनरशिप फॉर्म में AOP है, LLP है, तो आपको मेंबर के यहां पे नाम एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना है, रेम्यूनरेशन शेयरिंग रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यार ये क्लॉज एकदम सिंपल हो गया। से ABCR पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 532, आई हैव टू मेंशन 532। अच्छा, कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हो आपकी ये पार्टनरशिप फॉर्म में कि ABC पार्टनर से 532 था और अभी 221 कर दिया, तो आई हैव टू मेंशन दैट फैक्ट दैट इफ देयर इज अ चेंज लाइक दिस। फ्रेंड्स 532 का रेशियो था, मिस्टर सी रिटायर हो गए, A एंड B पार्टनर है, देन आई हैव टू मेंशन A एंड B 5:3, या इफ देयर इज चेंज आई हैव टू मेंशन दिस चेंज, दैट्स इट। इट्स अ सिंपल क्लॉज, लेट्स मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। पहले मैं सिंपल बोलूं, बाद में जो प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूं। आई हैव अ पार्टनरशिप फर्म, rather an LLP, wherein the profit sharing ratio is going this way. The profit sharing ratio is like, मान लो कि हम 3 फ्रेंड्स ने मिलकर एक CA की पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हमने क्लॉज रखा है प्रॉफिट शेयरिंग का, that 20% of the profit from the particular assignment, oh my mistake, 20% of the receipt of the particular assignment
would be taken by the partner who has brought that assignment. 40% of the receipt from the assignment would be taken by the partner who is executing that assignment, and remaining 40% would be shared by 3 partners after deducting expenditure in the ratio of 1:1:1. मुझे बताइए कि आपके क्लॉज 9 में ये कैसे लिखोगे? जगह ही नहीं है ऐसे, इतना सारा लिखने ही नहीं देते, कहां लिखने देंगे? 532 समझ रहा है मेरा फॉर्म, 221 समझ रहा है, चेंज समझ रहा है, बट ये जो मैं बोला वो नहीं समझ रहा है. 2 advices. Number 1, give the advice to your client कि यार ये जो आप रखो ना 20% and 40%, that should not be kept for profit sharing. Let it be called remuneration. बिकॉज आपको रेम्यूनरेशन की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, रेम्यूनरेशन का रेशियो लिखने की जरूरत नहीं. तो डीड बनाते वक्त ध्यान रखो. नंबर 1, 5 मिनट के लिए मान लो कि डीड बन गया है एंड दिस इश्यू कम्स अप, तो क्या लिखोगे? एंड दिस हैज कम टू मी इन द प्रैक्टिकलिटी. अब मैं डिस्कस कर रहा था तो 2 प्रॉब्लम आए. पहला प्रॉब्लम ऐसा आया कि मैं डीड में जो लिखा है 40% वाला 1:1:1, तो पूरा 1:1:1 लिख दो 3CD में. सर सिस्टम ने अगर चेक किया कि मेरा प्रॉफिट एक्चुअली डिवाइड हुआ है नॉट इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. मेरे आर्टिकल ने मुझे एडवाइस दी. I keep it as a part of discussion in my office and I discuss with everyone. मेरे आर्टिकल ने मुझे एडवाइस दी कि सर ऐसा करिए कि आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि PY 2021 में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो आप 3 पार्टनर हो, आप कितना ले जा रहे हो? मान लो 3 पार्टनर ले जा रहे हैं 30, 35 and say 35, then put in this clause 30, 35 and 35, so that आप ये क्लॉज में जो लिखोगे that would match with your profit and loss account. My counter question is, number 1, it would not match with my partnership deed. Number 2, नेक्स्ट ईयर अगर यही 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कोई अलग रेशियो में हुए, तो वुड वी बी एबल टू राइट 25, 25, 50? एंड इफ वी राइट 25, 25, 50, देन वुड वी बी एबल टू, would we have to qualify, or rather would we have to put it in our form 3CD that there is change in profit sharing ratio? Friends, it's too difficult in my opinion to put the profit sharing ratio in this type of awkward deed, but yes, I am facing it practically and I am giving the solution also for the current year. For the current year, my solution will be, I am going to accept the advice of my article to match 3CD and my profit and loss account. I'll be putting XYZ and as a part of my note to my report, because मुझे documentation के ऊपर भी बोलना है, notes to my report, I would be putting it this way कि ये 30, 35, 35 कौन से रेशियो से आया, पार्टनरशिप डीड के कौन से क्लॉज से, क्या अमाउंट थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक टेबुलर कॉलम में, एंड हाउ it is been distributed, and I'll be putting final thing in my 3CD. Nature of business profession and change any should be written. If you are in more than one business profession, then you have to give all the business. Assume I am into trading these bottles, water bottles, as well as I am into trading mobile phone. Then I have to put both the businesses in my 3CD. Not only that, friends, I am supposed to have the business code also. चलो ये आप लिख दोगे
things will be simple. This would create a problem in ratio. Question arises, 3CD में, if I'm not mistaken, clause number 40 is for GP ratio, NP ratio, stock turnover ratio. उसमें would it be possible for you to make the reporting unit wise? Palak Traders, proprietor Palak, and Palak Mobiles, proprietor Palak. 3CD तो मेरा एक ही जाएगा, दो बिजनेस के दो अलग अलग 3CD तो होते नहीं है फ्रेंड्स. तो ये रेशियो जो हम देंगे, would that be a composite ratio or would that be ratio unit wise? Answer is composite ratio. And not only composite ratio, उसमें बॉटल एंड मोबाइल का एग्रीगेट प्रॉफिट, एग्रीगेट टर्नओवर का जो जीपीएनपी रेशियो आएगा ना, वही हमें लिखना है. नॉट ओनली दिस, रिमेंबर, यहां पे भी मैं क्लियरली बोलूंगा that as a part of the notes to your report, make it possible to have unit wise columnar GP-NP ratio and aggregate. Like bottle का GP ratio है 12%, मोबाइल का GP ratio है say for example 8%, एवरेज आउट करके आया 9%, टोटल GP, टोटल टर्नओवर, एंड कैसे 9, and you have to put 9 in your main report. See, what I want to try and tell you is कि आपका जो आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, उसमें भले आप टोटल कॉलम लिखो या आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने आगे बोला वैसे 30, 35, 35 लिखो, बट गिव द कवर टू योर ऑडिट रिपोर्ट बाय वे ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वुड, सर आप तो ऑडिट रिपोर्ट बना के सीए होके कैंपस प्लेसमेंट में जाके बड़ी जॉब लेके चले जाओगे, जब स्क्रूटिनी आएगा तब आपके सर ये डील कर रहे होंगे. And it's not necessary that your sir is able to remember everything. Put a proper working paper, proper documentation. In 3CD, you have to give the aggregate. Books of accounts 44AA में प्रिस्क्राइब हुए हैं. हाँ, तो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब हुए हैं वो आपको बी में लिखना है, और उसमें से आपने क्या चेक किया वो आपको क्लॉज सी में लिखना है, क्लॉज 11 के. अब साहब एक आध दो इश्यू है मेरे पास यहां पे. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपने मेंटेन किए वो कहां पे मेंटेन किया ना, वो भी लिखना जरूरी है. द क्वेश्चन अराइजेस, as of today it's the era wherein people are maintaining the books of accounts on cloud based software. say for example कि किसी ने क्विक बुक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं, assume it's a cloud based software. क्या लिखोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पे मेंटेन हुए? आर वी सपोज टू गिव द डिटेल अबाउट द सॉफ्टवेयर which is being used? No. But I would be requesting you to give the detail about the server, rather the location of the server where the data is stored. हम लोग नहीं देते. हम लोग तो क्या एड्रेस में लिखते हैं? क्लाइंट का एड्रेस. हम और कुछ देखते ही नहीं है. हम क्यों नहीं देखते? हम इसलिए नहीं देखते कि लास्ट ईयर नहीं देखा था. लास्ट ईयर क्यों नहीं देखा था? उसके अगले ईयर नहीं देखा था. डोंट डू दैट. नंबर 1. नंबर 2, फ्रेंड्स, प्रॉब्लम होगा कि, लेट मी पुट इट दिस वे, आई हैव अ क्लाइंट हु इज अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. छोटा सा क्लाइंट है मेरा. अब उनके यहां एक अकाउंटेंट मैंने ही दिया हुआ है. वो अकाउंटेंट जाता है, मेरा क्लाइंट क्या करता है, रोज मेल बनाता है. वो लाल चौपड़ा में थोड़े बहुत वाउचर होते हैं, उसके बेस पे रोज मेल लिखा होता है. वो अकाउंटेंट जाता है, उसका आदमी जाता है, वीक में एक बार वो लेके आता है. अकाउंटेंट अपनी ऑफिस में ही बैठे बैठे टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने यहां ही लिखता है. क्लाइंट को एक बार वो पेन ड्राइव लेके रिपोर्ट बताने गया. क्लाइंट ने बोला, तू पेन ड्राइव लेके तो आया, बट पेन ड्राइव यूज कैसे करेगा? बोले कि सर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में. तो कि मेरे यहाँ लैपटॉप या कंप्यूटर में रखता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं. तो साहब हिसाब विसाब कैसे लिखते हो? तो कि ये लिख के हम लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं. द पॉइंट इज, ये एसएमई
ऑडिट में कवर्ड है, मान लो 44 AD के ऑडिट में कवर्ड है। क्वेश्चन अराइजेस, which place you will be writing as the place where the books of accounts are maintained? क्योंकि एसएमई के पास ना तो लैपटॉप है ना तो कंप्यूटर है। लैपटॉप कंप्यूटर होता तो आप बोलते कि बैकअप तो लिया है, भले वो लिखता अपने यहाँ है। He doesn't have the laptop, he doesn't have the computer. Which address we are writing? We are writing the address of that SME only, as that client only. अब लिख लिया आपने। Are you correct? Not 100%. Are you wrong? No, not 100%. वे आउट है। What is a way out? लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बट वो अकाउंटेंट को बोला है कि मंथली प्रिंट आउट ला के दे देंगे। वो देता है नहीं देता है, हम लेते हैं नहीं लेते, इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट वी आर पुटिंग दैट एड्रेस ओनली। यहां पे मैं एडवाइस दूंगा फ्रेंड्स, दैट एटलीस्ट इफ यू आर पुटिंग योर एड्रेस, SME's address, at least make it a point to have monthly प्रिंट आउट। आपके साइड से 100% क्वेश्चन आ सकता है कि सर काहे की मंथली प्रिंट आउट, ईयर एंड होने के बाद ही बुक्स लिखने होते हैं, ऑडिट करवाने, ऑडिट बाद में करवाना होता है। बुक्स लिखने का रूल ऐसा है कि आज मेरे यहाँ कोई डिपार्टमेंट वाला आ जाए ना, लास्ट वीक में रेड्स हुई थी सब जगह पे हमारे अहमदाबाद में, बराबर, आज मेरे यहाँ कोई डिपार्टमेंट वाला आ जाए ना, तो मेरे अभी तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होने चाहिए। दैट्स व्हाट सेक्शन 44AA टॉक्स अबाउट। 44AA डजंट टॉक अबाउट ईयर खत्म हो उसके बाद ऑडिट की ड्यू डेट आए, उसके बाद सीए बुलाए, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने के बाद। फ्रेंड्स, सो कीप एटलीस्ट मंथली डेटा रेडी। सर कोई टर्नओवर आप प्रिजम्पटिव में ले गए हो तो, माय मिस्टेक, इनकम आप प्रिजम्पटिव में ले गए हो तो दैट नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड। आई विल क्लैरिफाई। Our institute doesn't permit any other business or profession along with CA practice. But assume I am interior designer and मैं इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोफेशन में हूं, साथ साथ में फर्नीचर का बिजनेस भी करता हूं, फर्नीचर सेल भी करता हूं। अब मेरे इंटीरियर डिजाइनर की प्रोफेशन की प्रैक्टिस की रिसिप्ट 60 लाख रुपीस एंड बिजनेस में मेरा सेल 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए का मैं 6% बताने के लिए तैयार हूं। आई रिपीट, 80 लाख का मैं 6%, दोनों मेरे प्रोप्राइटरशिप में चल रहे हैं, 80 लाख का मैं 6% बताने के लिए तैयार हूं। दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग अंडर 44 AD एंड मेरा जो इंटीरियर डिजाइनिंग है उसका 60 लाख है, तो 60 लाख का मैं बता नहीं सकता हूं 50%, तो उसका तो मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। नाउ if I prepare one composite income expenditure account, then I have to put ये फर्नीचर के बिजनेस में 80 लाख का जो टर्नओवर था उसमें मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था मान लो 4,50,000। मैंने बता दिया 480 टू गेट रीड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दैट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं क्लॉज नंबर 12 में जब रिपोर्टिंग करूं तो मुझे मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के प्रॉफिट में से, इनकम में से कितना प्रॉफिट प्रिजम्पटिव से निकाल दिया मैंने, 480 नहीं 450, वो मुझे लेस करना पड़े। कौन सा 450 आया, जो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऑन द फेस ऑफ दैट एक्चुअल जो बन रहा था वो। आई डोंट हैव टू पुट द अमाउंट विच आई एम ऑफरिंग फॉर टैक्स 6% से, आई हैव टू पुट द अमाउंट विच इज पार्ट ऑफ माई profit and loss account. This clause will come very rarely, but yes, I need to. Mercantile system, cash system, you have to put the detail. All of you are aware under 145(1) we cannot follow the hybrid system of accounting. Friends, but एक खाली छोटा सा में पोजर यहां पे है, वो कह रहा है कि बिल्डर के लिए परसेंटेज कंप्लीशन एंड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड हो तो क्या वो डिटेल देनी कंपलसरी है, उसमें कुछ चेंज हुआ तो नो। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है इन क्लॉज नंबर 13 यू हैव टू पुट वेदर यू आर फॉलोइंग मर्केंटाइल और कैश। अच्छा, मैं लास्ट ईयर तक कैश फॉलो कर रहा था, करंट ईयर से मैं मर्केंटाइल में चला गया, देन आई एम सपोज टू गिव द डिटेल दैट आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम कैश टू मर्केंटाइल और वाइस वर्सा। बाकी ये कोई और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की भी यहां पे बात नहीं हो रही है, बिल्डर के लिए परसेंटेज कंप्लीशन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की भी यहां पे बात नहीं हो रही है।
the most important, Jignesh sir would be able to highlight at length post lunch, but ICDS. I very well remember, friends, for this ICDS, and I'll make it slightly lighter. 2017 were the, rather PY 16-17 was the first year from which this ICDS reporting clause number 13D, 30D, 13F has been made mandatory. अब ये ICDS actually is a subject of income tax 145(2), right? But इसके connections अकाउंट्स के साथ, तो जनरली मैं ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कोई सेमिनार में बोलने नहीं चाहता। हाँ, पिकासा फ्रेंड्स वुड टेल मी कि सर लास्ट ईयर ही आपका आईसीडीएस का सेमिनार था, यस आई हैव स्पोकन व्हाई आई एम कमिंग। 2017 में ऐसा आईसीडीएस का एक सेमिनार रखा था किसी मोफलिस एरिया में, जहां पे मैं बहुत जाता हूँ ऐसे सेमिनार करने के लिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, यू आर डूइंग ऑफिस, यू आर डूइंग योर कोचिंग, यू आर ऑल्सो हैविंग नंबर ऑफ थिंग्स टू रीड, बट मोफलिस एरिया में जाके सेमिनार करो ना, तो एक रिस्पॉन्स अलग होता है, बिकॉज उन लोगों को ज्यादा जरूरत है समझने की। अब ऐसा कोई प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट सर वॉज नोइंग मी, बहुत सीनियर पर्सन है हमारे फील्ड में, टीए का नहीं था, टैक्स प्रैक्टिशनर का, चेंबर का था। तो मुझे बोला कि आईसीडीएस में कोई फैकल्टी दे, मैंने एक्स का नाम दिया। जिस दिन सर्कुलर जाने वाला था उसके अगले दिन एक्स ने बैकआउट कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने फोन किया, भाई वो केवरी चाल है, व्हाई यू आर नॉट गोइंग? बोले कि मुझे पता चला कि यार इतना 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद मुझे वहां पे 30 जने का क्राउड मिलेगा, तो मैं थोड़ा पूरा डे वेस्ट करूं 30 जनों के लिए। अरे यार मैं तो, you are invited, you are going there for the first time, you should take this opportunity. अरे कि it's not opportunity for me, it's opportunity for them to listen to me. I believe it should never be. When you are a speaker, if I am coming to Vikasa, I am coming as if that I am coming here to learn something. मेरे सामने यार 180 जने बैठे हैं, I am going to learn something from them. मेहुल सर थे, I am going to learn. बीबी सर है, जिग्नेश सर है, I am going to learn something from them. So my approach going to any webinar, seminar is to learn. मैंने कहा ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने प्रेसिडेंट सर को बोला कि सर वो मना ही कर रहे हैं, तो कि तो अभी मैं तो है ना सर, अपने पास बैकअप अरेंजमेंट है ही, दूसरे है ही, वो आ जाएंगे। प्रेसिडेंट सर ने मुझे पूछा, वो दूसरे नहीं आए तो मैं सर तीसरे आ जाएंगे, तीसरे नहीं आए तो मैं चौथे, चौथे नहीं आए तो मैं सर मैं प्रिपेयर करके आ जाऊंगा, टेंशन मत लो ना आप यार, आप क्यों टेंशन लेते हो। दूसरे दिन सर्कुलर आया, मेरा ही नाम था एज अ फैकल्टी। मैं तो सर ये क्या गया, आई एम नॉट अ मैन ऑफ अकाउंटिंग, आई कैन नॉट स्पीक। बोले कि मैं पागल हूं कि दूसरे तीसरे चौथे की ड्रॉप आउट हो, उसकी वेट करूं और बाद में तेरे को लेके जाऊं। मेरे पास टाइम नहीं है कि तू फ्री है ढूंढने के लिए दूसरा तीसरा चौथा। अब प्रिपेयर करके अज्यूमिंग के सेकंड थर्ड फोर्थ है बैकड आउट, मार डालोगे। तो भी 30 जने थे, है ना, तो कॉन्फिडेंस थे हम। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, 30 and 300 के ऑडियंस को when we address, हम जो हमारा माइंडसेट होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो प्रिपेयर करके गया मैं, जितना भी मुझे पता चला, मेहनत की थी। प्रेसिडेंट सर, दूसरे सब सीनियर्स अगले दिन पहुंच गए थे, मुझे पूछा आना है अगले दिन, नहीं सर प्रिपरेशन बाकी है, मैं मॉर्निंग में ट्रैवल करके आ जाऊंगा। तो कि तेरे को ये पिकअप करके आएंगे, फाइन, अदरवाइज आई विल कम ऑन माय ओन। नहीं पिकअप कर लेंगे तेरे, फाइन। वो लोग आगे के दिन पहुंच गए थे, दे वर नोइंग कि क्या पोजीशन है वहां पे। मैं दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे पहुंचा, 10 बजे सेमिनार था, ब्रेकफास्ट चल रहा था, भीड़ काफी थी। तो आई आस्क के बेतरण हॉल लागे जी, 2-3 हॉल लगते हैं, या कोई दूसरा कोई फंक्शन है। वो जो प्रेसिडेंट थे वो थोड़े हंसे मेरे पे,
नहीं गया, अपना ही है। अच्छा, मैं तो ये लोग रिसोर्ट जैसा है तो यहाँ पे छुट्टी तो क्या है, तेरे को कपड़े से पता नहीं चलता है कि ये लोग छुट्टी मनाने आए हैं या प्रोफेशनली आए हैं? तो सर दैट मीन्स 350 है। मार डालोगे बे। मैं तो कल आप आ गए थे, बोलना तो चाहिए ना, क्योंकि मैं बोल देता तो तेरी तबीयत आज सुबह बिगड़ जाती और तू नहीं आता। अब बेटे तू टाई पहन के आ गया, अब तेरे को ही बोलना है। फिर तो ये भगवान नु नाम लई। But that's how I started the journey of ICDS and went on and on and on. And luckily, एक subject prepare हो गया. Definitely, it is connected with our practice. May not be connected exactly with academics, but practice. Friends, अब उस टाइम मैंने ये क्लॉज 13B, 13E, 13F में एक नहीं ऐसा आपने खाली एक प्रोफोर्मा रिपोर्टिंग बनाया होता है वैसा मैंने बनाया था, वही सेमिनार के लिए। दैट वेंट ऑन एंड ऑन फॉर ऑल अदर सेमिनार। क्या रिपोर्ट मुझे करना है? मुझे रिपोर्ट करना है यहां पे कि मेरे अकाउंट में मैंने जो प्रॉफिट बताया है वो, और आईसीडीएस की वजह से जो मेरा प्रॉफिट होता है वो, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज है। मैं समझाऊं कैसे होगा। मान लीजिए कि मेरा क्लाइंट स्टॉक मार्केट ही कर रहा है, ही हैज शेयर्स ऑफ इंफोसिस, टीसीएस एंड एक्सिस बैंक। अकाउंटिंग में जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप इसका स्टॉक वैल्यूएशन करते हो तो आप इंफोसिस की कॉस्ट, इंफोसिस की एनआरवी, टीसीएस, टीसीएस एनआरवी, एक्सिस बैंक कॉस्ट, एक्सिस बैंक एनआरवी, लेसर ऑफ द थ्री इंडिविजुअली लिखते हैं। सर विल टेल यू, जिग्नेश सर, कि आईसीडीएस 8 के मुताबिक you don't have to deal it script wise, but you have to deal it with class of security wise. So वहां पे टीसीएस, इंफोसिस, एक्सिस बैंक तीनों का टोटल कॉस्ट एंड टोटल एनआरवी whichever is less हमें लेना है। नाउ इसकी वजह से डेफिनेटली और स्टॉक वैल्यूएशन वुड डिफर, एंड इसकी वजह से डेफिनेटली आपने अकाउंटिंग में जो लिखा है ना उसकी जगह आपका इनकम टैक्स का प्रॉफिट क्या आएगा अलग, बिकॉज इनकम टैक्स में यू टू फॉलो द आईसीडीएस, अकाउंट में यू टू फॉलो योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एएस या व्हाट नॉट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस फ्रेंड्स, रिमेंबर it would be obligatory for me to put in ICDS 8 column increase or decrease in profit and the net effect of the same due to ICDS. ये लिखना हम लोग लिखते नहीं है ऑफिस में कभी भी, बट ये लिखना क्या है कंपलसरी। एंड सेम इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, नॉट इन्वॉल्विंग मच। क्लॉज 50, आगे के जो मेरे क्लॉजेस है ना उसमें इतना ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं है, मैं एसएसटी 43B वगैरह कवर अप करूंगा। क्लॉज 15 इज कनेक्टेड विद सेक्शन 45(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 45(2) इवन इंटरमीडिएट अब भी क्लियर हुआ हो वो फ्रेंड्स भी ऐसा कोई है जिसका अब भी रिजल्ट आया हो क्लियर हुआ? अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट डे। 45(2) कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। काफी लोग पीवाई 2021 में अपना बिजनेस बदल दिया। मैं समझाऊं कैसे। मैं मान लीजिए कि इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस में था पीवाई 20, और उसके पहले मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट करता था 1920। पीवाई 2021 में बहुत बड़ा इवेंट हो गया कोविड, तो मेरा इवेंट मैनेजमेंट बंद हो गया। अब इवेंट मैनेजमेंट बंद हो गया तो कुछ तो करना पड़े, तो मैंने स्टॉक मार्केट ही स्टार्ट कर दिया। जो जो शेयर्स मेरे इन्वेस्टमेंट के पड़े थे, आई हैव कन्वर्टेड द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड। If I've converted the same into stock in trade and now I have the business of shares only, I purchase, sell, I show this as my main activity, my business profession, then the investment shares which are converted into stocks should be reported in clause 50. क्या रिपोर्ट करना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, लिस्टेड शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन, डिफरेंट डेट अगर हो तो डिफरेंट डेट,
Cost of acquisition different हो तो different cost. An amount at which this asset is converted into stock in trade, the market value of the asset as on the date of conversion should be put in. इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे in the year of conversion, but इसके ऊपर टैक्स लगेगा, याद करो तो in the year in which stock in trade is sold off. But you have to put the figure about acquisition cost and the FFP. दूसरा, हमारे क्लाइंट ऐसे प्लास्टिक के ग्लासेस बनाते थे, चाय की किटली को सप्लाई करते थे, होटल्स को सप्लाई करते थे, अदरवाइज ऑफिस में बेचते थे. नाउ दे हैव क्लोज दिस बिजनेस. उनकी एक पुरानी ली हुई रांचड़ा में जमीन पड़ी थी एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ कैपिटल एसेट. नाउ दे कन्वर्टेड द सेम इनटू स्टॉक इन ट्रेड, प्लॉटिंग की स्कीम लगा रहे हैं. दिस क्लॉज विल कम इनटू प्ले 45(2). करंट ईयर में 2021 में ही उन्होंने किया है, ना उनका ही 3CD अभी चल रहा है. तो आई वाज टेलिंग माय कलीग्स दैट बी केयरफुल इन रिपोर्टिंग कि सर लास्ट ईयर तो नहीं किया था, बट वी हैव टू डू इट करेक्ट. भले लास्ट ईयर नहीं किया था, वी हैव टू डू इट इन द करंट ईयर. लास्ट ईयर रांचड़ा की जमीन थी, वो क्लाइंट को भी नहीं पता था. नाउ ही इज नोइंग. नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट clause, very I mean, I would say highly used in my office. That is clause number 16. It talks about amount not credited to profit and loss account. Friends, if the amounts are not credited to profit and loss account, it should be reported here. अब इसके है ना 5 सब clauses है. Item falling within the scope of section 28. 28 is a charging section of the topic business and profession. And mind well, अभी हमारा अहमदाबाद ब्रांच में ही मेंबर्स के लिए मेरा थर्सडे को इसके ऊपर लेक्चर था. तो वन मेंबर रेज द इश्यू कि 28(4) हो तो यहां पे लिखने का आंसर इज यस. Why? Because look at the words. Items falling under the scope of section 28. We are not saying 28 bracket 1 only. It is the whole 28. Number 1. Number 2. ये कौन सी आइटम लिखनी है? Amount which are not credited to profit and loss account, but which is chargeable under the head business should be reported in clause A, subclause A, clause 16A. Clause 16B talks about some credit of VAT, sales tax, service tax, etc. Clause C talks about escalation. This B and C are not much relevant, not touching upon for students. Now important. Clause 16D talks about any other item of income, and clause E talks about capital asset. Sir, समझो, any other item of income means it is not necessary that such items should be part and parcel of business and profession. आपके क्लाइंट ने रेंट कमाया है, डिविडेंड कमाया है, पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है, तो इट शुड बी रिपोर्टेड इन क्लॉज 16. फ्रेंड्स, आपके क्लाइंट ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है, एग्जाम दी है, डिविडेंड भी लास्ट ईयर पीवाई 1920 तक एग्जाम था. आपके क्लाइंट ने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया, इट शुड बी रिपोर्टेड इन क्लॉज डी. एंड सेम इज द केस विद कैपिटल आइटम व्हिच मे नॉट बी टैक्सेबल but not credited to profit and loss account, it should be reported in clause 16E. We never do this, but we have to do it. मैं honestly friends, ये मैं कहां से ये जो मैं आज बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स, तो कोई होम प्रोडक्शन नहीं, कोई आपको you will not get it from X reference book or Y reference book or no. This is from guidance note to tax audit issued by our mother institute, that is Institute of Chartered Accountants of India. बराबर, ये प्रेजेंटेशन मेरा जो है that is from GN to tax audit, ICAI publication. अब समझिए फ्रेंड्स, यहां पे my point is I have two important issues here. कि
मेरी ऑफिस में पहली बार आया कहां से, मैंने ना लिख के काफी कुछ दिया हुआ है, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू इन योर ऑफिस। मैं जो जो क्लॉजेस रेलेवेंट है वो टच अपॉन कर रहा हूं हमारी ऑफिस के लिए। लिखा मैंने सभी क्लॉज के ऊपर है, सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू, कोई ऑफबिट ऑफिस में आ जाए तो भी। सर ये मेरे यहां कहां से आया, मिसिस आर करके एक लेडी का ऑडिट आया, टैक्स ऑडिट आया उनके बिजनेस का। उनके दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, एक बिजनेस का सेट था, एक पर्सनल सेट था। अब बिजनेस के सेट में उनकी पोजीशन ऐसी थी कि उन्होंने बिजनेस का सेल्स, बिजनेस के एक्सपेंडिचर लिखे थे। और पर्सनल जो उनका सेट था ना, उसमें उनके पास दो घर थे जो उन्होंने लेट आउट किए थे, उसका रेंट आ रहा था, वो लिखा था। पर्सनल सेट था, उसमें वो घर लेने के लिए उन्होंने किसी रिलेटिव से लोन ली थी, उसका इंटरेस्ट जा रहा था, वो लिखा था। उन्होंने थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट किया था, वो लिखा हुआ था। पॉइंट इज के ये क्लाइंट के केस में, से फॉर एग्जांपल के 1920 फाइनेंशियल ईयर का आगे के ऑडिटर ने ऑडिट, मैं कंटिन्यू करूं या स्टॉप? आगे के ऑडिटर ने ऑडिट 1920 का खाली बिजनेस सेट का किया था, ये रेंट या डिविडेंड या स्टॉक मार्केट का किया नहीं था। द क्वेश्चन इज, एज ही इज नॉट ऑडिटेड एंड नॉट रिपोर्टेड, कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं था उनका। माय क्वेश्चन इज, जब मेरे पास ऑडिट आया तो हमारी एक टेंडेंसी होती है फ्रेंड्स, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स की, कि अगले वाले ने जो किया है ना उसमें भूल है ही। वी आर बेसिकली फॉल्ट फाइंडर्स। અને क्लाइंट ने बहुत सरस रीते हम कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से करते कि आपने करवाया था ऑडिट, बट आधा ऑडिट किया है पूरी फी लेके। पर्सनल सेट का क्या, मैं दोनों ऑडिट करूंगा वही फी पे। क्लाइंट बोले माना नहीं है मुझे। अब सुनो, मैं अगर दोनों ऑडिट करूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कैन आई से कॉम्पोजिट पीएनएल बैलेंस शीट बन जाएगा। अब आप क्लॉज 40 में जो अपना एनपी रेशियो डालते हो ना ऑफिस में, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय आपके टर्नओवर का रेशियो डालते हो। लास्ट ईयर का आपका प्रॉफिट कौन सा था, बिजनेस का। करंट ईयर में आपने अगर रेंट भी इसमें ऐड कर दिया, डिविडेंड भी इसमें ऐड कर दिया, आपने कोई शेयर्स बेचे थे उसका कैपिटल गेन भी इसमें ऐड कर दिया, तो योर रेशियो विल बी टू हाई। अच्छा चलो वो छोड़ो, डिपार्टमेंट वुड बी हैप्पी इफ योर रेशियो इज हाई, दे विल नॉट ऑब्जेक्ट अनलेस अदरवाइज दे आर ऑफ द ओपिनियन के आगे के ईयर में क्यों कम था, स्क्रूटिनी में लेते हैं तो प्रॉब्लम। लोन मैंने लास्ट ईयर तक बिजनेस के लिए एक भी रुपया नहीं ली थी, ये सब प्रॉपर्टी के लिए ली थी अनसिक्योर्ड लोन में, अगर मैं ये सब डाल दूं तो भाई देयर वुड बी ह्यूज इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन, बिकॉज ऑफ विच माय क्लाइंट्स केस कैन कम अप फॉर द स्क्रूटिनी। द ऑप्शन टू मी इज, जो लास्ट ऑडिटर ने किया है ना पलक, वही करो। आप खाली बिजनेस सेट का ऑडिट करो एंड जो रेंट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, दैट शुड बी रिपोर्टेड इन क्लॉज 16D। दैट इज कंपल्सरी। ना तो आपका अनसिक्योर्ड लोन में इंक्रीज होगा, ना तो आपका एनपी बनेगा, डिफरेंट होगा, बट रिपोर्टिंग हो गया। नंबर वन। नंबर टू फ्रेंड्स, दूसरे क्लाइंट के केस में वो खुद अकाउंट लिखता है, फ्रूट वेजिटेबल में ट्रेड करता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनके बिजनेस का है, एंड उनका जो बाकी सब इनकम आती है, इंटरेस्ट गेन वगैरह, वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करता है। इज इट परमिटेड? एक्चुअली नॉट। अब लास्ट ईयर तक ऐसा ही था, पुराने ऑडिटर ने परमिट किया था, करंट ईयर से मैं बदलने जाऊं तो मैंने अपने प्रॉब्लम कहे कि भाई एनपी रेशियो बदल जाएगा। द वे आउट फॉर मी इज, इफ आई वांट टू प्लेस ए क्लॉज 16D, clause 16D is one of the finest clause which is there in form 3CD, which we are very, I would say, using very less. I would request you to take the utmost advantage for the same.
फ्रेंड्स लैंड बिल्डिंग आपने ट्रांसफर की है 100 रुपए में और उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 रुपए तक है, तो 100 रुपए की ही कंसिडरेशन गिनेंगे, बट 110 से ऊपर है then they will be taking the consideration under section 50C to be that amount. That reporting is compulsory in clause 60 rather clause 17. देखो एक चीज समझ लो, आप जो 3CD देते हो ना वो क्लाइंट का देते हो, क्लाइंट के बिजनेस का नहीं देते हो। क्लाइंट के बिजनेस का 3CD देते होते ना तो 50C की कहां जरूरत थी रिपोर्टिंग करने में। 50C इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। रिमेंबर, you are not giving report of business of the client, you are giving the report 3CD for the client, wherein if it is a part of audit then business sections as well as other sections are covered. Friends, if your client is eligible for other deductions then those deductions should be mentioned here, 32AC to 35EK. बहुत ही रेयरली आता है, so not involving. Clause 20 again important. सर क्लाइंट के केस में फ्रेंड्स व्हाट वुड बी द पोजीशन इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ। अब इसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। सर your reporting requirement is this way, nature of fund in clause 20, try and understand, it talks about the employee's share of contribution, not employer, employee's share. like X लिमिटेड है, उसका मैं 3CD बना रहा हूं, उसमें मिस्टर ए एम्प्लॉई है, तो एक्स लिमिटेड के 3CD में मिस्टर ए का पीएफ का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई के शेयर का पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर एम्प्लॉई 80C मांगने वाला है, उसका रिपोर्टिंग यहां पे। नेचर ऑफ फंड पीएफ, सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, मान लो उनकी सैलरी ₹1,00,000 है और उसका पीएफ 12,000 कट हुआ है तो 12,000, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय मी 12,000। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, मान लो ये सैलरी उनकी सितंबर 2020 की थी, तो ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के पास से कलेक्ट करके एम्प्लॉई को नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक जमा करवा देना पड़ता है। सो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज 15th of October एंड डेट ऑफ पेमेंट इज से 14th October। फैंटास्टिक, चलो सिंपल रिपोर्टिंग है। बट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 अक्टूबर and actual date of payment is 23rd October 2020, then in that particular case friends, अब तक हम लोग आर्ग्यू करते थे कि भले 15 अक्टूबर तक हमने जमा नहीं करवाया, बट हमने एटलीस्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक तो जमा करवा दिया। इट शुड बी अलावेबल टू अस एज पर 43B। और गुजरात हाई कोर्ट इन द केस ऑफ GSRTC सेज नो, इट वुड नॉट बी। नाउ वी डोंट हैव टू इवन टेक केयर ऑफ गुजरात हाई कोर्ट ऑल्सो। नाउ ये मैंने लिखा हुआ है ब्लू कलर से हाईलाइट करके, एक्ट में ही निर्मला सीतारामन जी ने अमेंडमेंट कर दिया है दैट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड नॉट इंक्लूड एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। सो अगर 15 के बाद आपने जमा करवाया है 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ के, तो ये खर्चा आपको 3615A में डिसअलाउ हो जाएगा। और सुनो, अगर ये क्लॉज में आपने रिपोर्टिंग किया डिसअलाउंस का, बराबर है, बट आपने अपने ITR में डिसअलाउ नहीं किया है, तो अभी आज के दिन 143(1)A आ जाएगा, इंटीमेशन विथ एडजस्टमेंट, एंड इन द डेज टू कम और मंथ्स टू कम देयर मे बी प्री फाइल्ड रिटर्न। ये डिसअलाउ होके ही आपके प्री फाइल्ड में आ जाएगा। Sir, your report would be playing a very important role once it is pre-filing. Now see, the next clause talks about inadmissible expenditure। ये आप बहुत यूज करते हो। इनकम टैक्स आपने डिसअलाउ करके लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट किए हैं जो आपने डिसअलाउ करके लिख दिया। These are all to be mentioned
इन द रिटर्न। पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर ब्रोशर में आपने एडवर्टीजमेंट दी, पीएनएल में डेबिट हुआ था, डिसअलाउंस हुआ, दैट शुड बी रिपोर्टेड ओवर हियर। और ये जो यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उसके बेस पे भी क्या होने वाला है, डिसअलाउंस। अच्छा, दूसरा एंड ये खास समझना, अभी टीडीएस ना करो रेसिडेंट के पेमेंट से, तो मेजोरिटी ऑफ यू आर अवेयर, इवन इफ डन इंटरमीडिएट एंड फाइनल में अभी आए हो या आर्टिकल सिर्फ अभी स्टार्ट किए, तो भी मेजोरिटी आर अवेयर कि आपने टीडीएस नहीं किया किसी के पेमेंट से विच यू आर वेयर अदरवाइज रिक्वायर्ड, या टीडीएस किया पर आपने डिपॉजिट नहीं करवाया विच अदरवाइज यू वर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। देन अंडर सेक्शन 40A(IA) 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, जिसका रिपोर्टिंग आपको यहां पे करना है। अब मान लो मैंने मेरे क्लाइंट के केस में रिपोर्टिंग कर दिया कि 10 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्चुअल चार्जेस पे किए थे, टीडीएस नहीं हुआ, तो क्या इसे 3 लाख सीधे क्या हो जाने वाले हैं, डिसअलाउ। और जो 3 लाख डिसअलाउ हो गए वो मेरे आईटीआर में आ जाएंगे। अब मेरे एक फ्रेंड जिसका ऑडिट मैं करता हूं, पार्टनरशिप का, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसने बेचारे ने टीडीएस किया, उनको टीडीएस क्या है वही नहीं पता। He did not do the TDS। ऑडिट आया, मुझे करना था ऑडिट, बोले कि यार तू ये रिपोर्टिंग करेगा, लिखेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। मैं तो नहीं लिखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। सो मैं, तू फ्रेंड भले कितना भी अच्छा, बट मेरे लिए मेरी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मेहनत से मिली है, सो मैं लिखूंगा। सो आई रिपोर्टेड। मैंने उसको इतनी फेवर की कि मैंने उनके रिटर्न में इसका डिसअलाउंस नहीं बताया। सर 143(1)(A) 10 दिन पहले ही आया है, जिसमें 3 लाख रुपए डिपार्टमेंट वांट्स टू ऐड। अब ये एक सिंपल इश्यू हुआ। मैंने मेरे फ्रेंड को बोल के रखा था ये पार्टनरशिप के केस में कि तूने जिसको पेमेंट किया है वो पेमेंट वाले, वन वेरी गुड, समन से डिक्लेरेशन दे देंगे अकाउंटेंट का साइन करवा के, सर्टिफिकेट लेके कि उन्होंने ये इनकम बुक करवाई है और टैक्स भर दिया है, ऐसा डिक्लेरेशन वुड दे बी एबल टू गिव? ही सेड यस, लेके आऊंगा। मैंने कहा लेके रख। उन्होंने लेके रखा हुआ है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस he would not face the disallowance, don't worry। but सुनो, there is a lacuna in tax audit report as of today also, जिसमें मेरे फ्रेंड ने अगर ऐसा सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन मेरे ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले मुझे लाके दे दिया होता कि चल पकड़ ये सर्टिफिकेट सामने वाले का, मुझे खर्चा 40IA में डिसअलाउ होने वाला नहीं है, तो भी क्या मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ता? आंसर इज यस। रिपोर्टिंग में ये डिक्लेरेशन का कोई मेंशन नहीं है। रिपोर्टिंग में किसका मेंशन है? एक्सपेंडिचर के ऊपर टीडीएस करना था, नहीं किया, या टीडीएस करके जमा नहीं करवाया। तो हमारे रिपोर्टिंग में कहीं पे भी ये डिक्लेरेशन का कोई मेंशन नहीं है। सो आई हैव टू। अच्छा, 40A(3) 10,000 से ऊपर का खर्चा अगर आप अदरवाइज एन अकाउंट पे चेक करो तो 100% एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। आपको आपके सर ने या मैंने मेरी ऑफिस में मेरे आर्टिकल्स को सिखाया हुआ है कि कोई भी क्लाइंट की कैश बुक चेक करते वक्त 18,000 रुपए एक दिन में पेमेंट किया हो ना, तो टेली बैकअप मंगवा के 2 दिन कर दो, 9,000 एंड 9,000 आप वही कर दो। बट टू प्ले सेफ, एटलीस्ट गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्लाइंट। आप सर्टिफिकेट किसका लो? मैं ऑनेस्टली बताऊं फ्रेंड्स आपको, एक स्टॉक वैल्यूएशन का। दूसरा, अगर आप लिख रहे हो कि क्वांटिटेटिव डिटेल नॉट मेंटेन, तो उसका। तीसरा, आप सर्टिफिकेट लो 40A(3) का। चौथा, आप सर्टिफिकेट लो 269SS, 269T, 269ST का। वी आर डिस्कसिंग। सो ये लिखना कंपलसरी। अच्छा, डिडक्शंस, अदर डिडक्शन, इनकम टैक्स वगैरह जो डिसअलाउ हुए हैं, दैट शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग ओवर हियर। MSME I am not involving. Friends, related party payment,
रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करो, उसका रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग बहुत सिंपल है। रिपोर्टिंग क्या है फ्रेंड्स, मैं समझाऊं। आपका रिपोर्टिंग है नेम ऑफ द रिलेटिव, परमिट अकाउंट नंबर ऑफ द रिलेटिव, नेचर ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, बस इतना ही रिपोर्टिंग है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये अनरीजनेबल है या रीजनेबल है। अब सुनो, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल ने, मान लीजिए कि उनके रिलेटिव से कैपिटल असेट परचेज की है। तो मिस्टर एक्स ने उनके रिलेटिव से ऐसा प्रोजेक्टर परचेज की जिसके ऊपर मिस्टर एक्स डेप्रिसिएशन लेने वाला है। Whether reporting is required? Answer is yes. मैं कहां बोल रहा हूं डिसअलाउ करो, बट रिपोर्टिंग इज मस्ट। दूसरा, मिस्टर वाई ने या मिस्टर जे ने उनके फादर इन लॉ को पेमेंट किया है। लाइक मेरा ही ऑडिट रिपोर्ट है, मेरे फादर इन लॉ भी सीए है, मैंने मेरे फादर इन लॉ को कंसल्टेंसी चार्जेस दिए। एक केस हमने साथ में किया था मेरे क्लाइंट का, मैंने क्लाइंट से रुपए लिए और उसमें से हमने डिसाइड किया था कि भाई हम इक्वली शेयर करेंगे। क्लाइंट ने 2 लाख फी दी, मैंने मेरे फादर इन लॉ को 1 लाख दे दिए टीडीएस करके। भाई साहब मेरे ऑडिटर, और वो इन डेप्थ चेक करते। उन्होंने कहा कि आपने फादर इन लॉ को जो पेमेंट किया है ना सर, उसका मुझे 48 में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अरे मैंने समझा अभी मैं भी सीए हूं, वो भी सीए है, रीजनेबल है। बोले कि सर रीजनेबल अनरीजनेबल होता ही नहीं है, रिपोर्टिंग करना है मुझे। मैं कहां बोल रहा हूं कि आपने अनरीजनेबल पेमेंट आपके फादर इन लॉ को किया है, बट मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई पर वो मेरे रिलेटिव ही नहीं है। अरे कि सर आपके फादर इन लॉ है। मैंने बोला फाइन, मेरे 48 की डेफिनेशन में वो कवर नहीं है। अब बोले कैसे? 48 में रिलेटिव फॉर एन इंडिविजुअल वुड बी स्पाउस, brother sister, linearly ascendant and descendant of the individual. My father-in-law doesn't fall under the category linearly ascendant and descendant. भाई साहब ने डेफिनेशन पढ़ी 2 बार, he agreed, बट एक बार तो आपने बोल दिया था कि मैं रिपोर्टिंग करूंगा। तो हम लोगों का क्या होता है, हमने एक बार जो जवाब दे दिया ना, फिर हम उसके ऊपर अड़े रहते। सर ने मुझे बताया कि पर सर मुझे सेफर कोर्स में रिपोर्टिंग करनी है। सेफर कोर्स जैसा कुछ नहीं होता है भाई। व्हाट इज सेफर कोर्स? हम फंसे एक सेफर कोर्स। मैंने जब आर्टिकलशिप ज्वाइन की तो मेरे पापा के पार्टनर ने मुझे सिखाया था कि पटेल देसाई की कोई पार्टनरशिप फर्म होना तो जितने पटेल जितने देसाई है ना, उन सबका रिपोर्टिंग 48 में। थोड़े होता है, नहीं होता है। तकलीफ कहां होती है? मैं अभी एक केस में फंसा हूं। ऐसी कोई सीए की फर्म ने सेफर कोर्स में रिपोर्टिंग कर दिया था, केस स्क्रूटिनी में आया, रीअसेसमेंट में आया, रादर स्क्रूटिनी भी नहीं, जिसमें बोल रहा है कि आपने 15% इंटरेस्ट पे किया है इतने रिलेटिव को, 12% ही मैक्सिमम अलावेबल है। तो मैं 2 ग्राउंड पे लड़ रहा हूं कि ना 15% रीजनेबल है, मेरा स्क्रैप का बिजनेस है, स्क्रैप बिजनेस में कोई लोन देने के लिए तैयारी नहीं है, तो 15% इज रीजनेबल। पर्सनल लोन लेने जाओ स्क्रैप वाले के लिए 16-17% रेट लेती है, ये एसबीआई का रेट है सर उस ईयर का, देखो। एंड दूसरा मैं लड़ रहा हूं कि सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्टिंग किया है ना, उसमें फादर इन लॉ से लोन ली थी, उसको इंटरेस्ट पे किया है। फादर इन लॉ तो रिलेटिव ही नहीं है, तो आप 48 में कुछ भी डिसअलाउ ही ना कर सको फादर इन लॉ के लिए। बोले कि सीए ने रिपोर्ट किया। मैं ऊपर सर गलत रिपोर्ट किया है। सीए ने क्यों गलत रिपोर्ट किया है? सेफर कोर्स। कोई सेफर कोर्स नहीं होता है। यू हैव टू गिव योर रिपोर्ट इन सच अ वे दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोटेक्टेड, at the same time the client is also not be suffering for the pain which he should not. बेचारा फंस गया क्लाइंट, मुझे समझाने में टाइम लगा ऑफिसर को, लकीली आई कुड कन्विंस, एंड ये सब के लिए डिसअलाउ नहीं हुआ। बट पलक एचयूएफ ने उनके फादर इन लॉ को कुछ पेमेंट किया है। पलक एचयूएफ अगर उनके फादर इन लॉ को पेमेंट करे ना, तो 48 में रिपोर्टिंग आएगा, बिकॉज एचयूएफ के लिए रिलेटिव है member or relative of any member. My wife is the member of HUF, and linearly ascendant descendant of my wife would cover my father-in-law. So you have to look at the definition at length, in depth. 32AC, 32AD are all general, not involving. 43B. I have, I think 15 minutes. Office parents 15 मिनट, लंच 5-1 मिनट लेट करेंगे, चलेगा ना? All right.
फ्रेंड्स एज फार एज दूसरा जिग्नेश सर का कितने बजे? 2 बजे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। फ्रेंड्स 43B में जो पेमेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट टू शेड्यूल बैंक, इंटरेस्ट टू एनबीएफसी इज नाउ कवर्ड, सर इंटरेस्ट टू एनबीएफसी इज नाउ कवर्ड, और इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और फ्रेंड्स द गवर्नमेंट ड्यूज, अगर आपके लास्ट ईयर के पेंडिंग थे पे करने के और आपने करंट ईयर में पे किए तो यू हैव टू रिपोर्ट। एंड करंट ईयर में आपने इनकर किए हैं एंड अप टू ड्यू डेट पे कर दिए हैं, यू हैव टू रिपोर्ट। नहीं पे किए हैं ड्यू डेट तक तो भी यू हैव टू रिपोर्ट। दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस। व्हाट यू टू चेक आउट इज पीएनएल में म्युनिसिपल टैक्स डेबिट हुआ है, हाँ, तो वाउचर मंगवाओ क्लाइंट से, क्या रे पे करिए भाई, लाए तो अकाउंटिंग एंट्री है, कब पे किया था? तो क्या सर मार्च में ही पे कर दिया था, ईयर में ही, आउटस्टैंडिंग नहीं है बैलेंस शीट में, चलो मार्च में पे हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार चेक कर दो रिसीट। दूसरा, बोनस एम्प्लॉय का है, वुड बी कवर्ड बाय 43B, चेक कर लो वाउचर कब बोनस पे किया है, राइट? इफ इट इज पेड अप टू द ड्यू डेट, फैंटास्टिक, यू आर not going to have any disallowance, but if it is not paid, definitely there is disallowance which would be coming into play. एक पोजर है मेरे पास, प्रोफेशनल टैक्स यहां पे रिपोर्ट होगा या नहीं होगा? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कर देता हूं, बिकॉज इट इज कॉर्पोरेशन ड्यू। भले कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे करना है, बट आई रिपोर्ट। सो इफ योर ऑफिस इज फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ रिपोर्टिंग, प्लीज रिपोर्ट। फ्रेंड्स 29 is applicable to all the big companies, so I am not involving, but 29A and 29B are new, जो last year नहीं थे। 29A talks about आपने अपनी कैपिटल असेट बेचने का डिसाइड किया और एडवांस मनी लिए और फोरफिट कर दिया, तो मेजोरिटी ऑफ यू आर अवेयर आफ्टर 31 मार्च 2014 अगर ये फोरफिट हुए हैं तो ये अदर सोर्स पे 56(2) सब क्लॉज 9 में टैक्स हो जाते हैं। ऑडिटर इज आस्क्ड कि ढूंढ के निकाल एक एक बैंक में क्रेडिट हुई एंट्री, और उसमें अगर 56(2) है ना, तो 29A में यू हैव टू रिपोर्ट। मैं फिर से कह रहा हूं, आप 3CD बिजनेस इनकम का नहीं दे रहे हो, क्लाइंट का दे रहे हो, ये फंडा माइंड में ध्यान रखना। 29B में यू हैव टू रिपोर्ट द टैक्सेबल गिफ्ट अंडर सेक्शन 56(2)10। गिफ्ट कहां बिजनेस की होती है साहब? दिस इज गिफ्ट ऑफ chargeable under that other source, you have to report here. Friends, same way the major, now last 2-3 which are major, clause 30, sorry, 31A, my mistake, SS&T, आपका फेवरेट ऑफिस में जिन लोगों ने 3CD बनाया है उनके लिए, अनसिक्योर्ड लोन का अकाउंट लेके बैठ जाओ, उसमें जितना एक्सेप्टेंस करंट ईयर में किया है वो, जितना रीपेमेंट करंट ईयर में किया है वो, यू आर सपोज टू रिपोर्ट। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक किया है या नहीं, उसका भी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है। मान लो मेरे क्लाइंट का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था अनसिक्योर्ड लोन का, उन्होंने मिस्टर एक्स का ओपनिंग बैलेंस अनसिक्योर्ड लोन लियो, मिस्टर एक्स से 1 लाख है, उसके पास से 80,000 रुपए लिए एंड 50,000 रुपए रीपे हुए, then 80,000 to be reported as acceptance, 50,000 to be reported as repayment. You have to report maximum outstanding balance during the year. So मैंने पहले 80 लिए थे, बाद में 50 रीपे किए थे, तो मेरा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 180. And whether it is accepted and repaid other than account pay check, accepted other than account pay check, generally हम no ही, I mean accepted other than account pay check, no, it is accepted by account pay check or ECS or account pay draft. Repaid, no. And you to give the reporting whether this account is squared up or not. जीरो हो गया या नहीं हुआ है, उसका रिपोर्टिंग भी देना। अब यहां पे मेरे पास खाली एक ही पोजर है। मान लो मैंने एक्स को रुपए देने थे एंड वाई से रुपए लेने थे, और मैंने हवाला एडजस्टमेंट कर दिया।
एक्स से लेने थे, वाई को देने थे, मैंने एक्स को बोला कि तू वाई को दे देना, और मैंने उनके अकाउंट में एंट्री पास कर दी। वेदर द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड? आंसर इज यस। इज इट कॉल्ड अदरवाइज देन अकाउंट पेज चेक? आई वुड एडवाइज यू यस, but put a note that it is by adjustment entry and judgments are available in our favor that adjustment entry के ऊपर penalty नहीं लगेगी, but reporting is required. Friends, same way, 31 is on that only. Brought forward लॉस और डेप्रिसिएशन का शेड्यूल। अब यहां पे एक ही छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्लियर ईयर का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस हो ऑन एप्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो, दैट यू हैव टू पुट। ध्यान यहां पे ये रखना फ्रेंड्स कि ये जो आप लिख रहे हो ना, उसमें कॉलम असेस्ड का भी सेकंड लास्ट कॉलम दिया हुआ है। आपने रिटर्न भरा था एट अ लॉस ऑफ 5 लाख और आपका असेस लॉस हुआ 3 लाख, खाली 2 लाख का एडिशन हो गया, असेस लॉस कम हुआ, तो रिटर्न लॉस पर्टिकुलर ईयर का 5 लाख आएगा, असेस लॉस कितना आएगा? 3 लाख। दैट फिगर हैज टू बी पुट फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर। दूसरा, क्लाइंट अगर 115 BAC में जा रहा है, नए रेजिम में जा रहा है, तो उनको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से हो ना तो नहीं मिलता है। तो दैट फैक्ट, कितना आपको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा ना, दैट वुड आल्सो बी फॉर्मिंग पार्ट ओवर हियर। नॉट ओनली इट वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ओवर हियर फ्रेंड्स, ये इसकी दूसरी इफेक्ट भी आएगी, सॉरी, दैट वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लॉज नंबर 32, एंड आई वुड बी क्लियर कि मेरे क्लाइंट को इसको शेड्यूल DPM में ऐड करने देंगे। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग। सेक्शन 80 के डिडक्शंस आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन ऐसा है कि ATD लिखा नहीं ऑडिट रिपोर्ट में और क्लाइंट को रिटर्न में क्लेम करना है, विल ही बी एबल टू क्लेम? यस। अच्छा, क्लाइंट ने रिटर्न में क्लेम कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखा था, नोटिस आएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, व्हाई यू आर नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटी? डू नॉट वरी, नो, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एज फार एज पॉसिबल प्लीज मेक करेक्ट रिपोर्टिंग। मंगवा लो क्लाइंट के पास से लिख के, बराबर है, कि तू कितने डिडक्शंस लेने वाला है, तू कैपिटल अकाउंट में बता, PNL में कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया हुआ है मेडिक्लेम, कहां पे डेबिट किया हुआ है, एंड यू हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर डिटेल। फ्रेंड्स, TDS TCS रिलेटेड डिटेल्स आर मस्ट। अब देखो यहां पे मैं एकदम सिंपल मैनर में जो प्रैक्टिकल है ना उसको बोल दूं, आपको डिटेल देनी है आपके 10 नंबर की, कौन से सेक्शन में TDS हुआ से 194J, फिर उसके बाद का कॉलम है कौन सा पेमेंट है, प्रोफेशनल चार्जेस। PNL में कितने प्रोफेशनल चार्जेस डेबिट हुए हैं? 10,000, सॉरी माय मिस्टेक, 10 लाख। टोटल अमाउंट ऑन विच TDS वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड आउट ऑफ 10 लाख 9,80,000, क्योंकि 20,000 मेरी फी थी, 20,000 के ऊपर 194J आता नहीं, 980। अब ये 980 में से नॉर्मल रेट 10% से कितने के ऊपर TDS होना था? 5 लाख, जिसके ऊपर कितना TDS हुआ थे? 50,000। बाजू में एबनॉर्मल रेट, व्हाट इज एबनॉर्मल रेट? क्लाइंट लोअर TDS सर्टिफिकेट लेके आया हो कि भाई 2% से करो, 3% से करो, तो दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन कॉलम नंबर 8, एंड उसका TDS 480 के ऊपर 2% वाला लेके आया था तो 9600, दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन कॉलम नंबर 9। फ्रेंड्स, try to match, this is important, your column number 4 with your profit and loss account. Column number 4 should be matched with your profit and loss account. 10 लाख प्रोफेशनल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हुए हैं, तो कॉलम 4 में 10 लाख आने चाहिए, फिर TDS भले 980 पे किया हो, दैट 980 अमाउंट वुड बी पुट इन कॉलम नंबर 5, अदरवाइज डिपार्टमेंट में टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड आपका TDS TCS स्टेटमेंट जो आप क्वार्टरली भरते हो, वो टान नंबर आपका कौन सा फॉर्म? 26Q, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग से फॉर एग्जांपल के 15 जुलाई, डेट ऑफ फर्निशिंग से 18 जुलाई, 234 की फीस आ गई। यहाँ पे 200 रुपए लेते हैं ना पर डे, कितना लेते हैं? 200, एंड
आपके पास से मांग रहे हैं कि 26 क्यू में क्या सभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुए हैं। अबे याद करो, लास्ट ईयर जिन जिन लोगों ने ऑडिट किया है, क्या आप क्लाइंट का 26 क्यू मंगवा के चेक करते थे कि बताओ तो सब रिपोर्ट हुआ या नहीं, बिकॉज मुझे ये 5th कॉलम में लिखना है। वी डोंट डू, यू हैव टू रिपोर्ट अगर कुछ रिपोर्ट करना रह गया है तो। अच्छा, आपने टीडीएस लेट भरा है तो उसका इंटरेस्ट कितना भरा उसकी डिटेल भी यू आर सपोज टू गिव। नाउ लास्ट आर जनरल, आई टेक 3 minutes. You have to give the stock detail, quantity detail, raw material, finished goods, and the byproduct. Remember, WIP की डिटेल देने की जरूरत नहीं है सर, WIP नहीं लिखा है। मेरे ऑफिस के मेरे ही कलीग ने एक क्लाइंट के केस में क्लाइंट के साथ थोड़ा बोला कि WIP की डिटेल देनी पड़े। नाउ दैट क्लाइंट इज रनिंग अ फैक्ट्री, बट बाय डिग्री ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोले कि मैडम मैं भी पढ़ा लिखा हूं, के मैं सीए हूं। मैडम को तभी पता चला कि ये सीए। मुझे बोला कि आपको पता था? मैं दूं आप, मुझे पता था। WIP की डिटेल नहीं देनी है। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, अच्छा क्वांटिटेटिव डिटेल अवेलेबल ना हो तो यू कैन टेक representation from the management and put it as a note to your report. But please say, friends, डिविडेंड का जो क्लॉज था लास्ट ईयर वो 115O वाला था। 115O में डीडीटी के लिए रिपोर्टिंग था। अभी डीडीटी रहा ही नहीं, बिकॉज फ्रॉम द ईयर फॉर विच यू विल बी ऑडिटिंग 2021 डिविडेंड इज टैक्सेबल। लकीली यू आर सेड कि सभी डिविडेंड को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन से डिविडेंड को रिपोर्ट करना है? 222E, दैट इज लोन और डिपॉजिट टेकन by the substantial interest shareholder from closely held company, कितनी लोन ली and कौन से दिन को लोन ली, that is to be reported. Friends, cost audit, GST or service tax audit and the excise audit reporting and उनके qualification हो तो। And friends, I have spoken a lot about the ratio, not unit wise, but here the figures would be assessee wise. Sir ji, clause 41 talks about SFT, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भरा है क्लाइंट ने या नहीं भरा है, भरा है तो कौन सी ड्यू डेट थी, कौन से दिन को भरा है, और फिर आपको पूछ रहे चेक करो चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑडिटर, क्लाइंट ने भरा हुआ SFT कि उसमें उसने सभी डिटेल बताई है या सभी डिटेल नहीं बताई है। वो भी आपके पास से ही लास्ट कॉलम में मांग रहे हैं सर। एंड उसके बाद का जो क्लॉज है ना फ्रेंड्स, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड है, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग। बट टू क्लोज आई विल पुट दिस वे दैट व्हेन यू ऑडिट, रिमेंबर वन थिंग, दैट टेक utmost care while auditing. Please don't follow the exercise of copy paste from last year. You can copy paste, but whatever is been copied and pasted should be checked. એવું નહીં કે control C control V, please. And third, wherever you find that the things are doubtful, get the certificate 269SS हवाला एडजस्टमेंट, गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लाइंट। आप ही लिख के उनके पास सही करवाओ ना, और वो साइन करने को मना बोल करे तो बोलो कि मैं इतनी सारी साइन करके देता हूं, 5 साइन तो करके दे। ऑडिट रिपोर्ट जब उनको साइन करने भेजो ना, तभी गेट दिस 269SST के अकाउंट पे चेक सही है। 40A3 रिलेटिव का भी जो शेड्यूल आपने बनाया है वो भी कॉपी पेस्ट करके उनको दो कि इतने ही रिलेटिव है, इसके अलावा कोई रिलेटिव नहीं। मुझे कहां से पता चलेगा कि ये तेरा ब्रदर है या तेरा सिस्टर है या तेरे लिनियरली असेंडेंट डिसेंडेंट है? मुझे कहां से पता चले? फ्रेंड्स, गेट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, गेट ऑल द सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली, बिकॉज आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर विश्वास रख के आपको ऑडिट करने के लिए दिया है। फ्यूचर में आप भी कभी किसी के एम्प्लॉयर होगे इफ यू आर कमिंग टू प्रैक्टिस।
So take utmost care while auditing. The same way you would like your articles to take care when you become member. With this, I close here. Thanking again Vikasa, all office bearers and all participants listening me here as well as virtually. Thank you.